the host for recording this. Start again, Mike. Yeah. Hello, everyone. Thank you so much for joining us today. We have with us Vineet Kumar Singh and Anna Kumra, two talented actors who are going to be starring in the one-of-a-kind horror fiction, Betal, starting from 24th of May on Netflix. And of course, we have in conversation, they'll be conversing with none other than Kaveri Bamzai, an exponent, somebody whom everybody has admired over the last 3 decades, perhaps, career spanning for so long. She'll kill me later on, but that's all right. Over to you, Kaveri. Go ahead and blow us over. Thank you so much. Thank you. So welcome, Vineet, and welcome, Ahana. It's such a pleasure to have two such amazingly talented actors. And also in a show that seems to have been made for the lockdown times. So, Ahana, we were just briefly talking about it. Can we just go into looking at how Betal seems to be tailor-made for, this lockdown era? Hi, Kaveri. Thanks so much. Yes, I know we were just talking about it, and I think Patrick somewhere knew that we are going to go into lockdown. So he was talking about sanitization and the works that one requires to do, during the lockdown and the infection that's hitting us. And I mean, it's kind of eerie right now when you look outside your window and you don't really see anybody on the road, and it kind of is an eerie feeling, Yeah. It's almost like from the films that we see from Apocalypse Now or, those films that, you'll just walk on the road and there'll be nobody around you. So it's kind of really eerie. But coming back to Betal, yes, it is one of its kind, as you said. Definitely not only horror. It has so many things packed into one show. It's a thriller. It has drama. It has action. It has horror. And as I said earlier, there are like literally 3 worlds colliding into one through the show, because it's the curse of the Betal. Yeah. The Betal mountain has been cursed. And what is inside the mountain? There is an army of the undead, which is the East India Company, which is also part of history, in India, the British colonialism. And that undead army is going to be fighting a living army, which is the Bar Squad, being led by Vineet Kumar. Sirohi. Captain Sirohi, right? Yes. Vikram Sirohi. So we have a Vikram and we have a Betal and we have the British colonialism, and my director is British and Indian. So I don't know what more can I say. And there is Blumhouse, and there is Red Chillies, and it's on Netflix, and there is SK Global Entertainment. So I think there's so many things attached to this show. Yeah. And Ahana, what are you playing? You're playing part of the squad. Yes, I'm playing third in command. The first in command is Suchitra Pillai, that's Tyagi. Second in command is Vikram Sirohi, Vineet Kumar, and I'm third in command, that's DC Ahluwalia. And I play... Sounds very exciting. It is, and this is the first time I was handling arms and ammunition, and I was handling an M4, and we had, arms training, we had ammunition training, and thankfully we had Vineet leading the outfit, because having him, part of our squad as the chief, I think that was a very important part of even shooting, because there were lots of times that my directors didn't have the time to, be telling us, okay, how do you need to do this? And I think Vineet would just be like, guys, just follow my lead, So in many ways, we were looking up to Vineet for help. And I think because of his previous experiences working in films like Mukkabaz, where he's extensively trained, then also doing Bard of Blood, where he's trained for arms and ammunition, also with our training that we had for this show. But you're obviously never prepared. You're never prepared when you're, on location. It was literally like being on a battlefield. We were shooting sometimes in a 45-degree temperature. We were sometimes shooting, through the heaviest rains, through the thickest mist, with scorpions and snakes around us. And we had to get the shot because it was a very difficult shoot. So I think my character was very interesting. It's somebody I think very similar to who I am. She's really badass, doesn't mince her words, doesn't think twice before saying something. Really guards Sirohi fearlessly, loves Sirohi for being. I think the friendship between them has been so beautifully established through the series, and there's a huge, beautiful human element through Ahluwalia's character that you see in the series. So she sees through Tyagi, hates Tyagi, loves Sirohi for who he is,
And so many interpersonal relationships in the show, and we all have to get together to fight a bigger enemy. So yeah, I think that was the most exciting part of the show. Vineet, in many ways, it's about us right now. Hum bhi sab ikatthe milke, we're trying to fight this bigger enemy who's also unseen, and how much of what you were doing there, sort of leading the team, sort of infusing them with spirit, how much of that do you see is what we need in our world today? जो भी कहीं ना कहीं टीम जब एक साथ काम कर रही होती है तो भरोसा बहुत जरूरी होता है जी। और वो भरोसा आता है आपके एक्ट को देख के। हाँ। तो हम लोग, जैसा आहना ने बोला, काफी सारी चीजें आहना ने बताई, लेकिन कुछ चीज आहना ने नहीं बोला, मैं उसे ऐड करूंगा। उससे शुरू करता हूँ कि शी सेड हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में हमने शुरू किया था, फिर रेन। तो हम लोगों के पास ये था कि हमें एज एन एक्टर परफॉर्म करना है, आउटफिट है, और आउटफिट बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है जी। बट आहना के साथ क्या था कि आहना का प्रोस्थेटिक भी था, ऐसा हाफ ऑफ हर फेस, अच्छा, वो जला हुआ है। तो उसके लिए आहना को 2 घंटे पहले आना पड़ता था तैयार होने के लिए, और शूट में जब 45 डिग्री एंड यू आर डूइंग एक्शन जी, तो इट वाज स्वेटिंग लाइक हेल जी, बिकॉज हमने लेयर्स पहन रखी हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट इज दैट थिक जी। एंड उसमें आहना के लिए और डिफिकल्ट होता था बिकॉज हेलमेट है जी, गन्स हैं और ये प्रोस्थेटिक है, और प्रोस्थेटिक अगर खराब हुआ तो इट विल टेक अनदर 2 आवर्स। गॉड। तो इसने बहुत ही कहीं ना कहीं एक अलग तरह का कमिटमेंट दिखाया है जी। और वो सारी चीजों के लिए ये जरूरी है कि जो भी लोग हैं, हम लोग एक पांव पे खड़े रहते थे जी। बिकॉज हम इस वजह से कि कावेरी जी लोकेशन वैनिटी से दूर हुआ करती थी जी। आप कहाँ शूट कर रहे थे? हम लोगों ने पहले आउटडोर शुरू किया लोनावाला में, और लोनावाला में भी इट नॉट लाइक मार्केट और एनीथिंग, इंटीरियर, क्वाइट इंटीरियर, जिसके आसपास जंगल है, माउंटेन्स हैं, जो बेताल माउंटेन का जिक्र आता है ट्रेलर में। तो बहुत ही यूनिक किस्म का माउंटेन है जिसके बीच में एक पूरी बस्ती बसाई गई है आदिवासियों की, तो वो सेट लगाया गया था। तो वैनिटी से वहां चल के जाना मतलब इट विल टेक लाइक 8-10 मिनट्स। अच्छा। और अब 20 लोगों का वहां पहुंचना, तो आगे पीछे इट विल टेक लाइक एक शॉट लेना है तो इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर टू गेट रेडी जी। तो हम सारे के सारे सेट पे ही रहते थे। हाँ, exactly, made sense. हाँ, तो हम सब वापस नहीं जाते थे। अगर किसी को लू जाना है तो अलग बात है। मैं बोला भाई इधर ही बैठो, मैं इधर बैठूंगा तो और लोग भी रहेंगे। और आहना और हम लोगों की बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी पूरी टीम की कि चाय भी पीनी है तो इधर ही बैठते हैं, कुछ खाना है तो इधर ही खाएंगे, बिकॉज वक्त बचाते हैं ताकि टाइम पे हम लोग शूट कर सकें, और वो बॉन्डिंग दिखती है जी। तो ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने में काम आती है जी। और आज भी शूट खत्म होने के बाद भी हम लोग एक दूसरे को मिस करते हैं जी। ये ना दिखने वाले बेताल वायरस, मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, ये ना दिखने वाले वायरस ने हम लोगों से हमारा बहुत कुछ छीना है जी। और बहुत कुछ सीखने का, एनालाइज करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका है, वो करना चाहिए। हम लोगों अगर सिर्फ बेताल टीम की बात करें तो हमारा प्रीमियर नहीं हो पाया जी, और शाहरुख खान साहब की जो वो पार्टी वो नहीं हो पाई, और बहुत सारे मेंबर हमारी बेताल टीम के वो मुझसे ये बात कहते हैं, बार बार कहते हैं, मैं खुद भी वो पार्टी चाहता हूँ, मैं क्यों मिस करूँ। मैसेज भेजते हैं कि जरा लॉकडाउन के बाद एक पार्टी करें। बिल्कुल, इसलिए हम लोग इस इंटरव्यू में स्पेशली इस बात को कह रहे हैं कि वी आर वेटिंग, और ये मौका उस वायरस ने छीन लिया है, लेकिन खान साहब वो मौका हमारा वापस हमारी जिंदगी में ले आएंगे अपने तरीके से। उनके तरीके अलबेले और अनोखे होते हैं, तो उस अनोखे तरीके से वो मौका हम सबकी जिंदगी में आएगा
बिकॉज पूरी टीम मुझसे पूछती है। तो विनीत आप एक तरह से टीम के लीडर बन गए एक्चुअली में, वो बड़ी जरूरी है। आप एक्चुअली लीडर भी नहीं बोलूंगा, दोस्त बने हम सारे बहुत अच्छे। अच्छा। बिकॉज अब जैसे कैरेक्टर भी वैसा है कि अहाना और मेरे किरदार की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग इतनी डीप है कि अहाना शी इज लाइक माय इंटरनल वॉइस ओके व्हेन आई एम इन अ सिचुएशन। बिकॉज मेरे किरदार का जो पास्ट है दैट पास्ट इज डार्क, देयर इज सम डार्क सीक्रेट्स जो इसे हॉन्ट करता है। अच्छा, इसके हाथ से कुछ हुआ है, वो सीरीज में पता चलेगा। इसके हाथ से कुछ हुआ है और वो इसके मन पे वो एक भार है जिसे वो अंडू नहीं कर पाता जी। और एक्सटर्नल बैटल जब लिविंग और डेड के बीच में, जो आहाना ने बताया, शुरू होती है जी, उस एक्सटर्नल बैटल के बीच में कभी भी इसका पास्ट इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। अच्छा। और इसे हॉन्ट करता है जी। और इसे बहुत ही क्रूशियल डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जी। ये चाहे उसके लिए अग्री करे ना करे। आहाना इज समवन, आहलू का जो किरदार है, शी इज समवन, वो मुझे समझती है बट शी ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज माई पास्ट। इसको ये एक अंदाज है कि कुछ हुआ है इसके साथ, जी। ये शेयर नहीं करता जी। और शी इज समवन जो एक टॉर्च के जैसे कहीं ना कहीं वो सिरोही जो जिसके लिए सिरोही जीता रहा है, वो सिरोही का एहसास इस सिरोही को कराती रहती है। अच्छा। कि हम होते हैं ना कि कावेरी जी, हर इंसान को पता होता है मैं कौन हूँ जी, बट कभी कभी भूल जाते हैं ना। हाँ, तो वो एहसास कराने वाला इसमें कहीं ना कहीं आलू का किरदार है और दोस्ती से ये चीज डेवलप होती है, न कि बॉस बनने से। बॉस आप बनते नहीं हैं, आप लीड करते नहीं हैं, लोग बनाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, अगर लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपसे अग्री करते हैं, वो छोटी छोटी बातों में होता है। मैं थोड़ा सेल्फिश एक्टर हूँ बिकॉज मैं एज एन एक्टर जब काम करता हूँ तो कावेरी जी मैं थोड़ा अपने स्पेस में चला जाता हूँ। हाँ, वो मुझे मेरा अपना मोमेंट चाहिए होता है। लेकिन शूट के पहले जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई है, बिकॉज गन्स वगैरह तो मैंने बार्ड के लिए वो ट्रेनिंग हुई थी, मुक्काबाज में फिजिकल ट्रेनिंग बहुत हुई थी, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज थी ग्रुप फॉर्मेशन। बिकॉज आप अगर कहीं एम्बुश के लिए जाते हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म द ग्रुप, और अगर पीछे हटना पड़ता है किसी सिचुएशन में तो पूरा ग्रुप कैसे पीछे आएगा। और उस ग्रुप के साथ ऐसा नहीं आप अकेले भाग जाएंगे जी। और अगर कहीं उस ग्रुप में कोई सिविलियंस हुए, जो ऐसी सिचुएशन होती है इन जनरल आजकल, हाँ, जो सिक्योरिटी की टीम्स हैं जो अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं, मुश्किल जगहों पे मुश्किल घड़ी में काम कर रही होती हैं, तो सिविलियंस को अगर प्रोटेक्ट करते हुए पीछे हटना है तो सिविलियंस की पोजीशन कहाँ होगी, आगे पीछे सेंटर में कौन कैसे कवर करेगा, बड़ी गन्स को ग्रुप में कैसे यूज करना है, छोटी गन्स को कैसे यूज करना है, नाइफ कैसे यूज करनी है। तो ये ट्रेनिंग शूट के पहले हुई थी। कितने समय की ट्रेनिंग हुई थी आपकी? एग्जैक्टली दिन तो नहीं बता पाऊंगा बट हाँ, काफी वक्त तक हम लोग काफी कंफर्टेबल हो गए थे और वो ट्रेनिंग इस आउटफिट में ही थी। अच्छा। हाँ, कि बहुत सारी चीजें, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, गन्स हैं, छोटी गन्स है, नाइफ है, मैप है, वाटर बॉटल है, वॉकी टॉकी है। एंड सबका एक अलग तरीका होता है, जैसे आप नाइफ यूज करेंगे वो बड़ी गन नहीं यूज करेंगे ना। बिल्कुल, कि अगर आप नाइफ यूज करने जाएंगे तो आपकी बड़ी गन कहाँ होनी चाहिए जी। और आप नाइफ के साथ क्या ख्याल रखेंगे यूज करते समय, बिकॉज आप अकेले ही नहीं, आपके साथ ग्रुप भी है, तो आप फुल्ली खुद को एक्सपोज नहीं कर सकते जी, बिकॉज आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है ग्रुप की जी। और हर मेंबर एक दूसरे को बचाता है जी, क्योंकि अगर मैं कहीं से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ तो आई कांट सी माई बैक, राइट, बट मेरे पीछे की आंख कौन है, वो मेरी टीम का ही कोई मेंबर है। हाँ। और उसका बैक मैं हूँ, बिकॉज आई एम लुकिंग दिस साइड, ही इज लुकिंग दैट साइड, ही और शी, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जी। तो वो मुझ पे ट्रस्ट करता है, मैं उस पे ट्रस्ट करता हूँ जी। समवन इज लुकिंग इन साइड्स, राइट। तो वो ये टेक्निकल चीजें हैं जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल्स काम करते हैं, तो वो चीजें समझने को मिली और उससे हमारी एक बॉन्डिंग हुई जी। और या जो लॉकडाउन की सिचुएशन है अभी, ये एनिमी वो है जो विजिबल नहीं है, दिस वायरस नेकेड आई से हम नहीं देख पाते जी। बेताल को आप नेकेड आई से देख पाएंगे।
और वो इंसान ज्यादा देख पाएगा जिसपे बेताल की थोड़ी ज्यादा कृपा है। वो पहले देख पाता है, उसका होना वो भांप जाता है। हाँ, कि उसकी प्रेजेंस को, उसकी पावर को, वो उस एहसास उसको बहुत पहले हो जाता है। बेताल को किस पर कृपा होती है? बेताल खुद तय करता है कि वो किस पे कृपा करेगा, और उसकी कृपा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत खुश होने वाले हैं। वो आपको जरिया बना के राइड करता है। ये बेताल की कृपा है कि हम सब लोग घर पे बैठे हैं। और हाँ, उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। और वहां भी कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन की सिचुएशन आई है जी। सीरीज में भी जी। ऑन स्क्रीन भी एक सिचुएशन है जहाँ पे ऐसी चीज क्रिएट होती है। एंड यहाँ वायरस हमें दिखता नहीं है, वहां वो दिखेगा। अमेजिंग। कैसे फिल्में और सीरीज ऐसे कोइंसिडेंस, कंप्लीट yeah कोइंसिडेंस। but it's actually great art which tells you what reality is like in a way na. बिल्कुल। और इनफैक्ट हम लोग जब शूट कर रहे थे बेताल, तो जब आउटडोर की शूट हमारी खत्म हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं जैसे इसमें एक टनल है, वो टनल इज लाइक मोर देन 100 मीटर लॉन्ग टनल। हाँ, वो दिखाया है ट्रेलर। हाँ, और वो यूज नहीं होती जी। ऐसा लगता है किसी ने बना के रखा था हमारे लिए, आपके लिए। It was outstanding that tunnel. It was कैसे इतनी बड़ी टनल पहाड़ के अंदर आप कैसे बना सकते हैं, और ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। about it and nobody knew about it. No. Amazing. लोगों ने खोजा उसे, डायरेक्शन प्रोडक्शन की टीम ने उसे खोजा, और उसे देख के लगा भाई ये टनल तो कहीं जाती नहीं, इसका क्या मतलब, ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे लिए बनाया। कोइंसिडेंस ना उससे ट्रेन निकल रही है ना कुछ, और हमने कहा ये कहाँ से आई भाई जंगलों के बीच में। अलग, बिल्कुल अलग। तो ये एक अजीब सी चीज थी। प्लस जब हम लोग शूट कर रहे थे मुंबई आ गए, और हमारा यहाँ इंडोर का शेड्यूल था जी, तो यशराज स्टूडियो में सेट लगा था। हाँ, वहाँ एक अलग किस्म की चीज शुरू हुई। हाँ, वो शेड्यूल के बाद मुझे भागना था जॉर्जिया। हाँ, जॉर्जिया जाना था मुझे। मेरी फिल्म का एक शेड्यूल था, और वो गुंजन सक्सेना। राइट। अब उसमें बहुत सारा एयरफोर्स से रिलेटेड ऐसी चीजें, बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल था जी। मैंने डेट्स दी हुई थी। और आप बाहर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, अभी तो बाहर जाना मतलब सपने जैसा हो गया इस सिचुएशन में। तो डेट्स मैंने दी थी, और उसके हिसाब से सारी ऑफिशियल जो भी वीजा वगैरह ये सारी तैयारियां उस हिसाब से हुई थी। शेड्यूल भी लगा था, और मेरा बहुत काम था वहां पे जी। यहाँ क्या हुआ कि शूट के दरमियान आखिरी वक्त में जीतू बीमार पड़ा, जितेंद्र जोशी। जी बिल्कुल, वेरी गुड एक्टर। हाँ, वो सभी बहुत अच्छे हैं, सुचित्रा, जीतू, थे ना? या वो काटेकर, इस बार काटेकर का जीतू वो वाला भाई है जो काटेकर से बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा। जैसे फिल्मों में होता ना, एक माँ के दो बेटे, एक काला और काला काम करने वाला और एक अच्छा काम करने वाला। हाँ, इस बार काला काम करने वाला जीतू है। एक शशि कपूर और एक अमिताभ बच्चन। हाँ, तो ये इस बार उससे भी ज्यादा काला काम करने वाला इंसान। अच्छा। बहुत अच्छे से किया। खैर, तो वो शेड्यूल जब हमारा चल रहा था जी, आई वॉज रियली एक्साइटेड। चलो लास्ट शेड्यूल है जी। और अचानक वायरल इन्फेक्शन शुरू हुआ, और एक एक करके बीमार पड़ने शुरू हुए। अच्छा, आप सब? हाँ, एक एक करके। मैं बीमार नहीं पड़ी थी। जीतू, विनीत, जीतू की तबीयत, आधी यूनिट करीब बीमार पड़ा। और हाँ, और जीतू शूट करता था, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता था रात में, फिर अगले दिन शूट करता था। फिर तो हम लोग परेशान थे। और फिर वो वहां से जंप करके वो बीमारी मुझ पे आई। हाँ। मुझसे पहले कम से कम 20 और लोगों को हो गई। हाँ। लिटरली सेट पे डॉक्टर्स हुआ करते थे, चेक होता था। और जब तक रिपोर्ट आती कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तब तक हम लोग काम कर रहे थे जी। तो देखते देखते 7-8 दिनों में आधी से ज्यादा यूनिट बीमार थी जी। और लिटरली हम लोग मास्क लगा के शूट कर रहे थे। तो ये कोरोना वायरस आपने पहले ही देखा? हम लोगों ने पहले लॉकडाउन देख लिया था। फिर ये हुआ कि लॉकडाउन करते हैं। लॉकडाउन टर्म उस समय नहीं था। हाँ। तो ये हुआ कि भाई ये क्या इस साल हुआ था कि लास्ट ईयर? लास्ट ईयर 2019 की बात बता। अच्छा। तो शूट रोक दी गई, और
कुछ दिनों तक हमने शूट नहीं किया, पूरा सेट बना हुआ था जी यशराज स्टूडियो में। दो स्टूडियो के अंदर 2 सेट बने हुए थे, बड़े बड़े, सब सारा सेट खड़ा है और शूट रुक गई। एंड मुझे 2 मुश्किलें, एक कि भाई ये काम खत्म हो, हाँ, फिर एक आपको फोर्स, जाना हाँ है। एक रिदम होती है ना काम की, वो रुक गई। ऑल ऑफ सडन वो रिदम रुक गई। जी एज एन एक्टर जो दिन रात एक रिदम में, एक किरदार के रिदम में हूँ, वो रिदम को रोक दिया उस वायरस ने। जी वो दूसरा वायरस था। हाँ, और हम लोग बात करते थे फोन पे, एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे, मिल भी नहीं रहे थे, बाहर नहीं निकल, ताकि हम सारे जल्दी रिकवर करके वापस आए। और टच वुड कुछ दिनों के बाद सब नॉर्मल हुआ, लॉकडाउन खुला, हमारी शूट हुई, बेताल की शूट कंप्लीट की, और कंप्लीट करके मैं जॉर्जिया भागा। और जिस दिन रैप पार्टी थी उसी दिन भागा, और जैसे शाहरुख खान आए हैं और उसी टाइम एंड विनीत मिल ही नहीं पाए। ओहो। बट अहाना अहाना, आप थोड़ा अपने किरदार के बारे में बताइए, बिकॉज काफी फिजिकलिटी है उसमें, और काफी फिजिकल एक्शन करनी पड़ती है आपको, तो ये आपके लिए अनयूजुअल था ना अहाना? Yeah, I think it was a little unusual for me. Of course, I've never done it. But you know, I come from a family of officers. My mother herself is a police officer. Oh, really? And yeah, she's a deputy superintendent of police. In Varanasi? And, no, so we are from Lucknow. So she was from UP police. And when we moved to Bombay, she could not be a part of the Mumbai police because then you have to work through central government. Right. So then she moved to the CBI. She worked here in the CBI for about 12 years. Wonderful. And then when she she became the deputy superintendent of police, and then she had to go back to Banaras for 2 years out there, after which she took a voluntary retirement. So she served the police for about 40 years. Super. And yeah, so I mean, a lot of women around me have been officers. I've been brought up amongst a lot of female officers because my Masis are all my mother's friends. And, you know, I mean, I've only heard things about, you know, her training days from her, you know, because when I got this role, I told her I'm playing an officer. And I think somewhere I've always been deeply fascinated to wear a uniform. Yeah. Because I just think like if I probably wasn't an actor, I would have been in the armed forces. I probably would have joined the army, or probably Air Force is something that I was always very, very fascinated with. So yeah, I think like just the idea of playing an officer wearing a uniform was very, very exciting to me. And the first day I remember when I wore the uniform, we had a costume trial, and I think I think I can say this for everybody. All of us felt very different. I remember the boys were getting a haircut. So, you know, the day the boys are all sitting together in the makeup room, and everybody was getting like this crew cut. And I was just looking at all the boys and I was going like, I can't, it just seemed like they're all like, you know, officers. And it looked really nice. Like the whole outfit looked really nice, all of us together. What about the challenge of playing someone with, you know, a scarred face? So I was coming to that, and you know, and then we had about a week-long training for arms and ammunition, because none of us had ever held a gun. This was the first time, and what is nice is that my directors pushed us to wearing our uniform while doing our training, because they were like, you need to get used to wearing this outfit and training, because we don't want any surprises springing at you guys out there. Right. So the only thing that I probably wasn't prepared for was having prosthetics on my face, because as I said earlier, we have shot in you know, in a terrain which had no place to hide, no tents, nothing where you could take shelter. We shot in like about 45 degrees. You know, that heat just before the rain, it really gets hot. Like, oh my God, it's crazy. So we shot in that temperature. We were all loaded in an army truck, so it was very suffocating to be inside that. So coming back to my scar, when my directors told me, both Nikhil and Patrick told me that I'll be having a scar on my face. So I was like, whoa, okay. You know, they were like, we don't want to delve too much into the past. We don't want to, you know, make this empathetic, but she's a very strong girl, and she's become what she is because of whatever's happened to her in the past. And she could have wallowed in self-pity, and she could have, you know, we don't want that kind of empathy towards her. She's really hardcore, like she's really badass.
And she's somebody who doesn't mince her words. She says what she feels. And she's somebody who fiercely guards Sirohi because both of them went through training together as officers. Right. And although he's second in command and she has to listen to his command, there are lots of times she does not agree with Sirohi. Right. And she really is his voice of reason. Right. I had my prosthetics test, I think, 3 times. The team flew in Millennial VFX. They flew in from the UK and they did my prosthetics. They've done the prosthetics for the entire series for everybody, for all the pretas. So all the masks created for all the zombies have been done by them as well. As actresses, we're so used to having, you know, so much of fluff around us. We're used to having like somebody, you know, doing hair, makeup, there's a hair didi, you know, everything. Juice. Those are the works you're used to, you know, dealing with for all your life. And then suddenly I'm like, oh, I have no makeup in this show. All I have to do is spend those 2-3 hours that I spend otherwise in a prosthetics van. There was, you know, an entire van dedicated to the prosthetics team. Right. And I used to spend all my time there. Right. So, you know, I keep sharing this, but I think, you know, the idea lucky if they do that. Because, you know, you really gain patience. You have to sit in that chair for hours when they stick the patch. So they made about 60 patches for me. And there was so much work involved because it's a thin silicone patch. Right. You have to stick it with so much finesse and exactly the same place where they stuck it like yesterday. Right. So imagine for 50 days, you're doing the same thing every day, all the time. Right. And then you have to, you know, there's some spray painting. Yeah. And there is coloring. You have to make sure that you match it to my skin color. It looks like it's exactly my skin. So I think there was so much work involved, and I had to make sure that I don't sweat. When there was rain, I had to make sure I always have the umbrella on me. Because if the patch, as Vineet said, if it falls off, that means that's another 2 hours going into, you know, the van again. So I had to be extremely careful about how I dealt with the patch through the shoot. The first time when I saw it, it takes a while getting, you know, just getting used to seeing yourself like this because you've seen yourself so disfigured. Yeah. And it's uncomfortable, I have to admit. It was very uncomfortable looking at myself. And I remember the first day of shoot, when I stepped out of the vanity, there were so many people on the set. So there are technicians, spot boys, you know, people who are caterers, everybody, you know, workers. And although I knew, like my team knew that this is going to be my face, but I wasn't prepared for the eyeballs staring at me the minute I stepped out of the vanity. And I remember I stepped out and everybody was like, you know, they're like stealing glances at you. So they're looking at you and then looking away and then looking at you like, like what have they seen? So I literally walked out of my vanity like this, you know. I was like, oh God, I don't want them staring at me. I don't want them staring at me. I was just like, I was walking like this. And then I was like, 1 minute. I have to be like this for 50 days, okay? Stop it. Stop being such a sissy. And then I kind of, you know, really thought about it for a second and I was like, you know, just embrace it. And I'm glad I did it because it was I think it was so liberating for me. And I remember going on set and Jeetu looked at me and he said, "Ay la, ye to real lag raha hai." So I was so happy because it was such a huge compliment. It didn't look like, you know, it's not part of me. It didn't look like it's somewhere out of place. It just looked like it's something that I could have been through this. And just that thought about how people live with this for the rest of their lives, you know. So yeah, I think somewhere I miss my patch and I miss being Alu. And I'm really glad that my team was fantastic. They were really like, they were also helpful. Like I remember anything used to happen, they used to be like, Alu ko pehle tent mein lo, Alu ko fan do. So I remember I used to come and everybody used to like give me fans to sit, you know, because they used to be like, her prosthetic patch should not fall off. So, you know, I just think like everybody was so nice to me because of वो आलू को टेंट में नहीं बुला रहे थे, आलू के प्रोस्थेटिक्स को टेंट में बुला रहे थे क्योंकि सबके 2 घंटे जाते जो भी है. But Vineet, nobody knows better than you what it's like to live your part. सबने आपकी मुक्काबाज स्टोरी सुनी है, पढ़ी है, देखी है, and जो आपने ऑफ स्क्रीन किया और फिर ऑन स्क्रीन किया, मतलब it's quite amazing. I think quite unparalleled. तो आपके लिए कैरेक्टर के अंदर घुस जाना ऐसे, how important is it?
मुझे लगता है वो एज एन एक्टर मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि राइटर्स ने जो लिखा है और मेकर्स जो क्रिएट करना चाहते हैं, एक पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है एज एन एक्टर। उस किरदार को जिंदा करना, वो आपके थ्रू वो किरदार लोगों तक पहुंचता है। तो मैं ये मानता हूँ ये एज एन एक्टर मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, और वो तभी हो पाएगा जब मैं उस किरदार को अच्छे से समझ सकूं जी। तो वो किरदार को जानना, उसके अंदर क्या चलता है जी। क्योंकि बाकी चीजें तो ठीक हैं, एक्सटर्नली जो चीजें हैं वो तो हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो हेल्प करेंगे कि आप ये कॉस्ट्यूम पहन लो, आपको ये कैरी करना है, आप ऐसे दिखेंगे। लेकिन वो जो चीज आपके अंदर है जी, उसकी तैयारी सिर्फ आप कर सकते हैं जी, कोई और नहीं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कोई नहीं जा सकता जी, और वो एक्टर को ढूंढने का काम आपका है। जी। तो आप उसके दरवाजे आप खोलिए, उसकी खिड़कियां आप खोलिए, वहां थोड़ी हवा आने दीजिए, जी। उसको थोड़ा खाली करिए, नए को आने दीजिए। अब नया क्या है जिसे आने देना है। जब वो चीज अच्छे से समझ में आती है तो उसको अंदर आने की जगह भी मिल पाती है और वो अपने आप हो जाता है। उसके लिए फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स इंटरनल प्रोसेस, इनसाइड आउट का ही ये प्रोसेस है। तो किरदार के रिदम को समझना, किरदार कहाँ से आता है, कोई भी ऐसा क्यों है और वो इस सिचुएशन में ऐसा क्यों रिएक्ट करता है, उसके पीछे उसका पास्ट होता है, उसकी अपब्रिंगिंग होती है। तो वो बैक स्टोरी कहीं ना कहीं आपको ढूंढनी पड़ती है जी। तो वो तैयारी एक्टर करता है और ये बेसिक है, मैं करता हूँ मेरे किरदार को वो करने के लिए, बिकॉज फिर वहां पे सच जो है किरदार का वो आपकी आंखों के थ्रू दिखता है जी। उसके लिए एफर्ट आप कितना भी एफर्ट डाल लीजिए, वो कैमरा सब पकड़ लेता है जी। I think we can go on forever, but I've been told that this is the last question. तो मैं आप दोनों एक ही सवाल करूंगी कि आप दोनों ने लॉकडाउन कैसे बिताया? Ladies first. Oh God, look at Vineet. Smart one. I've had 2 releases during this lockdown, and I think extremely lucky to have had. I think we just all worked so much last year, right? You know, and thankfully I had 2 releases. I had Boot, I had Marzi on Boot, right on 15th March it came out. And 1 month literally went on promoting, I mean, you know, in the promotions of that show, and it was a different kind of promotion. So of course I'm seeing, you know, how it is. For me, this year is a very important year because I've had some fantastic releases, Betal being my second. And, you know, we were eagerly waiting for Betal to release this year, and we were looking at how it's going to pan out for all of us, you know, career-wise and everything. And I think it was very exciting. So now, of course, Betal will be taking up another few weeks, and the excitement of soaking into it and, you know, doing all the interviews. But I was in the first half of, in March, I was at my sister's house in Ghatkopar, and she has a baby, and they are a work from home situation with my sister and my brother-in-law, and we have a 3-year-old nephew, and he and I got along. So I think for me, it was a very interesting time because I literally saw the world through his eyes. I became his best friend. I was reading children's books. I started writing a children's story. So I think it's been pretty fascinating for me. Yeah, I think it's been a good time. Like I really saw a world which is fearless, and I saw a world which is very magical and fantastical through his eyes. And my mother's just brought me back to my house. So finally I have the comfort of my own room and, you know, homemade food at my house. So yeah, I think the lockdown's been all right. It's not been so bad. Yeah. विनीत, आपके लिए? मेरे लिए मेरी योजनाएं तो कुछ और थी जी। क्योंकि मेरी 5 रिलीजेस हैं जिसमें 4 काम रेडी है, इंक्लूडिंग बेताल जी। और अगर उसमें सक्सेना भी रेडी है, गुंजन सक्सेना रेडी है, और मेरी एक फिल्म अभी मुझे अप्रैल में ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना था यूएस। मैं पहली बार जाने वाला था यूएस में, कभी गया नहीं हूँ। कौन सी फिल्म है ये? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अच्छा। और उसके लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन था वहाँ पे। सुपर। और सबसे खास बात ये थी कि वो फेस्टिवल के फाउंडर हैं
रॉबर्ट डी नीरो साहब, बिल्कुल। और मैं उनका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। एक मौका था जो इस ना दिखने वाले विषाणु ने मुझसे छीन लिया। तो लेकिन मैं खुश इस बात के लिए हूँ कि मेरी फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है। तो मेरी योजनाएं ये थी, और गुंजन सक्सेना की रिलीज थी, और फिर आधार एक फिल्म है मेरी, तो उसकी रिलीज थी, और एक तमिल की रीमेक हिंदी में हो रही है, वहाँ की सुपरहिट फिल्म है तिरुतु पयाले 2, तो उसकी डबिंग करने जा रहा था। तो सब कुछ रुक गया क्योंकि विधाता की मर्जी कुछ और थी। तो मुझे ये समझ में आया है कि खुद को बहुत सीरियस मत लो, और जैसे एज एन एक्टर इम्प्रोवाइज करते हैं हम लोग सेट पे, वैसे ही अब लाइफ में इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। और खैर एज एन एक्टर आइसोलेशन में काफी लंबे समय तक मैं रहा भी हूँ। बहुत सारे एक्टर्स के साथ ये होता है जी। काम नहीं है और आप महीनों लाइक दुनिया चल रही है और आप रुके हुए हैं इंतजार में कि शायद कभी काम मिलेगा जी। तो वो वक्त काफी रहा है, तो उसमें जीना सीख चुका हूँ बहुत पहले, कि उसमें खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, क्या नया पढ़ सकता हूँ, क्या नया देख सकता हूँ, क्या नई एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ एज एन एक्टर, किसको सुन सकता हूँ, किसके इंटरव्यू देख सकता हूँ, किसकी बायोग्राफी पढ़ सकता हूँ, क्या बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो वो एक आदत सी थी जिसकी वजह से वहाँ सर्वाइव करता था। अब वो चीजें फिर एक मौका मिला है, बिकॉज मुक्काबाज के बाद लगातार शूट कर रहा था जी। तो ऑल ऑफ सडन अब ये हो गया है, दुर्भाग्य है। लोग बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसको फेस करना है और मिल के लड़ना है और निकलना है। तो अभी लिखना कुछ चल रहा है, मेरी सिस्टर और मैं हम साथ में लिखते हैं, मुक्काबाज की थी हम लोगों ने साथ में। तो अब उसने तो काम कर दिया है अपनी तरफ से, मैं नहीं बैठ पा रहा था बिकॉज मैं शूट कर रहा था। तो अब मैं और वो एक साथ बैठ पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैं देख नहीं पाया था, तो नेटफ्लिक्स पे वो देख रहा हूँ, बिकॉज बहुत अलग अलग तरह की चीजें नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिलती हैं। कि एक शो है जो फिलिस्तीन और इजराइल में है, दूसरा शो है या फौदा, फिर आप द किंगडम देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके के इन्फेक्शन से रिलेटेड है, या पेंडेमिक काइंड ऑफ। फिर द डर्टी मनी देखी मैंने, जो बहुत सारे अलग अलग देशों में ऐसे स्कैम जो हुए हैं। तो बहुत ही अलग अलग तरह का काम देखने को मिलता है। वो डॉक्यूमेंट्री है द डर्टी मनी। बाकी मुझे पर्सनली ब्रेकिंग बैड पसंद है, वाल्टर वाइट का किरदार, एंड वागनर मोरा साहब नार्कोस में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो बहुत सारा अच्छा काम भी देखने को मिलता है। और बाकी तो बेला चाव भी देखा है सबने। मनी हाइस्ट या इज समथिंग लाइक सुपर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो घर पे करता हूँ। और हाँ ये खैर मुझे ये पहले से पता था कि झाड़ू लगाते समय आप कचरा आगे चलता है, आप पीछे रहते हैं, पोछा लगाते समय आप उसका ठीक उल्टा करते हैं। ये बात मैं पहले से जानता था, और ये बात खुल के सोशल साइट्स पे लोग डिस्कस करेंगे, ये दिन भी आएगा, ये नहीं सोचा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। आई विश वी कुड कंटिन्यू विद इट, बट you have many more people to do. Pawan, thank you. Last word from you. Absolutely. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Pawan. Stay safe. Stay safe. Thank you guys. Thank you on behalf of Tiffin Talks. I thank Vineet and Anna once again, and I'm sure that just like your past movies and shows, Betal will be a super hit as well. We look forward to seeing you soon. Thank you. एक स्पेशल चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ जाते जाते पवन जी। बेताल हम लोगों ने भी नहीं देखी है। बेताल हम लोग भी ऑडियंस के साथ 24 तारीख को देखेंगे। फर्क इतना होगा, वो अपने घर में देखेंगे, मैं अपने घर। तो फिर मेरा आज का कैप्शन YouTube मेरे वीडियो का रहेगा, बेताल के लिए बेताब, विनीत और आना। बिल्कुल। Thank you. Stay safe. Thank you guys. Thank you. Stay safe. Bye bye. Thank you. Bye Kaveri ji. Bye. Bye.